Yes, previous class we have done that. Yes, in the previous class we have done the Hardy-Weinberg principle, and today we will see what are the exception to this Hardy-Weinberg principle. We find that Hardy-Weinberg principle was applicable to only those species which are non-evoluting species. Okay, so now we will today learn about the exception, in which cases these Hardy-Weinberg principle can be disturbed. First, if there is any gene flow, or there is some gene migration. If there is the हेलो मैम। genetic, yes, Shivam, मैम वो जो आपने इसमें टाइम दिया है वो 8 PM का दिया है लाइक। but everybody knows that their class will start from 7:30. या ये तो है। मैं वो ज्वाइन नहीं करा ना, इसलिए मैं सोच रहा था। Mhm. Okay, so see. So gene flow and gene migration, another one is the genetic drift. Then there is the exception if there is a non-random mating. So these are the non-random mating, and these are the conditions where the gene migration, where the Hardy-Weinberg principle cannot be applicable. Okay, and these are very very important things. So today we will discuss mainly these factors. What are the conditions where we cannot apply the theory of the Hardy-Weinberg? Okay, and I hope that all the conditions of Hardy-Weinberg principles is now clear to you. That what is allelic frequency, what is the genotype frequency, gene frequency, these are clear to you. Okay, so yes, there is another thing, like if there is the natural selection is operating, then also it is not applicable. If recombination is there, then also it is not applicable. Hardy-Weinberg principle will not applicable then, and then if there is the mutation, then it will also not be applicable. Okay, so there is the 6 criteria where we cannot apply the theory of this Hardy-Weinberg principle. Okay, first let us understand about this genetic drift, and today we will मैम find. एक मिनट टाइम देना मैम, हम कॉपी करने के लिए टाइम दे देंगे। Okay, beta. Okay, you just note it down. Genetic drifts are related. We will found two things. One will be the and bottleneck effect, and another one is the founder effect. Founder effect. Okay. So these two things we will do. First, we will discuss this genetic drift, because otherwise everything you know, and we will start our discussion based on this genetic drift. Okay, Karthik, done? Done, beta? मैम ये अभी भी इवोल्यूशन ही चल रहा है। मैम एक सेकंड मैम, Yes, evolution is going on. तो मैम जो लास्ट क्लास हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग भेज सकते हो ग्रुप पे? Last class तो हुआ ही नहीं बेटा. I was not able to join. I was not नहीं able to मैम join. उससे पिछला। Evolution के, you will get it in our app. Check the app. Okay बेटा, done? Okay. यस मैम, So यस यस। yes. So we will start with the genetic drift. Genetic drift मतलब क्या है कि suddenly drifting मतलब suddenly कोई चीज
एलिमिनेट होना और सडनली कोई चीज़ अगर एड ऑन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्टिंग. अब सपोज वी आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट दिस जेनेटिक drift. Now see, suppose in a population this is A, capital A, small a, capital A, small a, small a, small a, small a, small a. So this is the individual present in a population. Okay. So if I found the frequency of capital A, that should be 1, 2, 3, 4, 5, 6. And total जो है, total number of allele is 12. So allele frequency of A would be 6 upon 12. That should be 0.5. If I find what is the small a की frequency क्या है, that is also 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So this is also 6 population and their population is 6 upon 12. That should be 0.5. अगर इनके एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होता है तो किस तरह से हो सकता है? देखो बेटा, एलिल फ्रीक्वेंसी के जो चेंज है दैट कैन बी इन बोथ वर्ड्स. आइदर ये कम हो सकता है या तो फिर ये बढ़ सकता है. ठीक है. फर्स्ट थिंग है कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज की लिमिट क्या है. लिमिट ये है कि हो सकता है कि 0% हो जाए या तो फिर ये 100% हो जाए. अगर हो सकता है कि कोई एलील एकदम पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो जाता है या तो फिर वो सैचुरेशन लेवल रीच कर जाता है. तो देखो यहाँ से दो क्वेश्चन. एक है कि एलील फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होता है तो किस रेंज में चेंज होता है. रेंज विल बी बिटवीन 0 to 100%. कैसे चेंज होता है? 0% मतलब सारे एलील्स विल बी एलिमिनेटेड. 100% मतलब allele will reach the saturation. Now genetic drift is what? Suppose कि कहीं पर earthquake होता है and earthquake की वजह से ये जो 3 population है, these 3 population has been eliminated. Eliminate अगर हो जाता है, so after earthquake, what is the frequency of capital A? Capital A के जो frequency है, that will be 2, 2, 4, 5, 5 out of 6. 6. 5 out of 6 मतलब it will be approximately 0.8%, right? 0.8%. whereas small a के जो frequency है that should be 1/6. that means it is about 0.2%. ठीक है. अब देखो बेटा, यहाँ पर भी 0.8 plus 0.2 it will be 0.2 it will be 1. मतलब जेनोटाइप फ्रीक्वेंसी इस कंडीशन में डिस्टर्ब नहीं हुआ है, पर एलिल फ्रीक्वेंसी हैज बीन अब्रप्टली चेंज्ड. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट? हाउ दिस जेनेटिक ड्रिफ्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल सिलेक्शन? बिकॉज अगर नेचुरल सिलेक्शन होता तो ये इट विल डिपेंड कि नेचर किसी सपोज की, तो हमारा जो थ्योरी होता तो ये था कि कैपिटल ए एलील को नेचर ज़्यादा सिलेक्ट कर रहे हैं. इट इज़ नॉट लाइक दैट. यहाँ पर क्या है, ड्यू टू सम अर्थक्वेक ऑल दिस स्पीशीज हैज बीन एलिमिनेटेड. अब कौन सी स्पीशीज एलिमिनेट होगी, कौन सी स्पीशीज रह जाएगी, इसका कोई आता पता हमें है ही नहीं. हम ये नहीं कह सकते हैं कि कैपिटल ए इज प्रोन टू दैट अर्थक्वेक. कैपिटल ए जिंदा रहेंगे और बाकी जो है दे विल नॉट एबल टू सर्वाइव. ये हम नहीं कह सकते हैं, राइट? तो द सिचुएशन इज दैट कि नाउ द सिचुएशन इज दैट कि हम एक एब्रप्टली एक सडन चेंज हो रहा है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द जेनेटिक ड्रिफ्ट. उल्टा भी हो सकता है. अगर ये 3 रह जाता है, इफ दिस 3 विल सर्वाइव एंड दिस 3 विल डिस्टर्ब, ये भी हो सकता है कंडीशन. मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से जेनोटाइप फ्रीक्वेंसी, हमने हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल की 2 रूल करा था. एक था कि एलिल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है. दूसरी हमने करा था कि जेनोटाइप फ्रीक्वेंसी जो है वो भी कांस्टेंट होता है, दैट विल बी इज इक्वल्स टू 1. जेनेटिक ड्रिफ्ट जब होता है दैट विल डिस्टर्ब्स द एलिल फ्रीक्वेंसी, बट कॉन्स्टेंसी को वो इफेक्ट ना भी कर सकता है. एक एक इंडिविजुअल एलिल के फ्रीक्वेंसी विल बी चेंज्ड. ओके. नेक्स्ट थिंग देखो, यहाँ पर 2 चीज हो सकता है.
या तो फिर बॉटलनेक इफेक्ट या तो फाउंडर इफेक्ट। व्हाट इज दिस बॉटलनेक इफेक्ट? बॉटलनेक इफेक्ट मतलब मैम यस बेटा। मैम मैम जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन में फर्क क्या मैम बता रहे थे मैम? जो अर्थ क्यों है मैम, वो नैट नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ? वो नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि देखो बेटा नेचुरल सिलेक्शन अगर होता तो कोई ना कोई इंडिविजुअल तो ऐसे ज़रूर होते। सपोज कि अगर आज अर्थक्वेक आता है तो आप भी नहीं कह सकते हो कि मैम मैं अर्थक्वेक से जिंदा रह सकता हूँ, ना मैं कह सकती हूँ। हम में से किसी को भी पता नहीं है कि अर्थक्वेक की वजह से किसी का भी कभी भी डेथ हो सकता है। तो नेचुरल सिलेक्शन अगर होता, लेकिन देखो जैसे कि अगर मेरी बॉडी में एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन है तो मैं ये कह सकती हूँ कि कार्तिक आपसे ज़्यादा इम्यूनिटी मेरी है, और आप अगर एंटार्क्टिका में मुझे जाके छोड़ दोगे तो आई कैन सर्वाइव देयर बिकॉज आई हैव मोर अडेप्टेबिलिटी टू स्टे इन द कोल्डर रीजन। जब हम कोई ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज़ की बात करते हैं तो वी आर नॉट able to adopt those situations. That is why it is called the genetic drift. Suddenly इसमें change आ जाता है allele frequency. That is the genetic drift. Next is the gene flow और gene migration. तो देखते हैं बेटा gene flow या gene migration क्या है, right? मैम फिर नेचुरल सिलेक्शन में जैसे हमने वो ब्लैक मॉथ व्हाइट मॉथ वाला बताया था मैम, वो नेचुरल सिलेक्शन हुआ? वो नेचुरल सिलेक्शन है, राइट। इसमें वो दोनों क्योंकि स्पीशीज वो सरवाइव कर ओवर गई। द टाइम धीरे धीरे करके वो एलिमिनेट होता है, ऐसा कोई सडन चेंज उसमें नहीं है। नेक्स्ट इज द जीन फ्लो। नेक्स्ट इज द जीन फ्लो। सो व्हाट इज दिस जीन फ्लो बेटा? जीन फ्लो है कि सपोज की लाइक दिस कैपिटल ए, ये जो सारे इंडिविजुअल्स हैं इनमें से सपोज ये दोनों इंडिविजुअल एक आइलैंड में शिफ्ट हो गए, एक आइलैंड में शिफ्ट हो गए। अब इस आइलैंड में क्या है? इस आइलैंड में और कोई इंडिविजुअल है ही नहीं, केवल स्मॉल ए है, ठीक है। सपोज दीज आर द ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ह्यूमन पॉपुलेशन के ये जो जीन्स है, ये जो दो डिफरेंट टाइप के जीन्स है, उनमें से केवल स्मॉल ए ही इस आइलैंड में शिफ्ट होकर आया है, राइट। तो जीन फ्लो की वजह से भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। आप अगर इस आइलैंड में देखोगे तो यहाँ पर भी ह्यूमन पॉपुलेशन तो क्रिएट होगी, लेकिन इसमें कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी वुड बी 0, क्योंकि जब जो इनिशियल पॉपुलेशन आया था, जो फर्स्ट 2 इंडिविजुअल्स आए थे, उनमें तो कैपिटल है ही नहीं, उनमें केवल स्मॉल ए है। तो डेफिनेटली इनके बीच में अगर रिप्रोडक्शन होता है तो जो इनके प्रोजेनी होंगे उनमें भी स्मॉल ए ही प्रोड्यूस होगी, अगले वाले जनरेशन में भी स्मॉल ए प्रोड्यूस होगी। सो यहाँ पर देखो ए के फ्रीक्वेंसी, स्मॉल ए के फ्रीक्वेंसी वुड बी 100%। इस आइलैंड में जो ह्यूमन पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी में एलिल फ्रीक्वेंसी बिकम्स 100%। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ए will be known as the founder species. So this is known as the founder effect. This is known as the founder effect. Okay, जब कोई एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल एक 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 फाउंडर स्पीशीज की तरह बिहेव करते हैं, सो इट विल गिव द फाउंडर इफेक्ट। इन केस ऑफ फाउंडर इफेक्ट कोई एक पर्टिकुलर एलिल के फ्रीक्वेंसी विल बिकम 100%। हमने अभी देखा था कि जो फ्रीक्वेंसी के चेंज होता है, एलिल फ्रीक्वेंसी के जो चेंज होता है, that will be variable, that is variable from 0% to 100%. So in case of the founder effect, we are getting the 100% allelic frequency, and that mostly occurs due to the gene flow or the gene migration. जीन माइग्रेशन मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ जीन जब एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करके जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द जीन फ्लो और द जीन माइग्रेशन। ओके, नेक्स्ट थिंग जो है दैट इज द bottleneck effect. So what is this bottleneck effect? अभी हमने जो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से किए थे, सपोज कि यहाँ पर एक बॉटल है, यहाँ पर एक बॉटल है, राइट, और इस बॉटल के अंदर कैपिटल ए ये सारे इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, और हमें इनमें से कुछ जीन्स को इस प्लेट के अंदर ट्रांसफर करना है। तो इस बॉटल के जो मतलब
ओपनिंग है वो काफ़ी नैरो है, सारे जीन्स एक साथ बाहर निकल के नहीं आ पाएगा, ओनली फ्यू जीन विल कम आउट। सपोज कि कैपिटल ए, कैपिटल ए और एक स्मॉल ए बाहर आ गए, या तो फिर सपोज कि ये दोनों आ गए और उसके साथ स्मॉल ए आ गए। सो देखो एलिलिक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी चेंज हो रहा है, एंड ये कंडीशन हमने कहाँ पर देखा था? हमने देखा था इन केस ऑफ द जेनेटिक ड्रिफ्ट, जबकि एक एलील की पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाता है और दूसरी की फ्रीक्वेंसी काफी कम हो जाता है, दैट इज ड्यू टू दिस जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, नेक्स्ट वन देखो। ओके, सो दैट इज ड्यू टू द मैम जेनेटिक ड्रिफ्ट। यस बेटा। मैम ये फाउंडर इफेक्ट और बेटलनेक इफेक्ट में फर्क क्या है मैम? फाउंडर इफेक्ट और बेटलनेक इफेक्ट। Founder effect and bottleneck effect both are the both are just signifying that allelic frequency is changing, but in case of founder effect, the founder species will give 100% allelic frequency, and it generally occurs due to the it generally occurs due to the effect of the gene Gene flow migration. or gene migration, whereas the bottleneck effect में एलिलिक फ्रीक्वेंसी तो चेंज होता है, पर इट इज ऐसा नहीं कि एक एलिल कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है या तो फिर एक एलिल कंप्लीटली डोमिनेटिंग होता है, ऐसा नहीं, एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है, एंड दैट इज मेनली ड्यू टू द जेनेटिक ड्रिफ्ट, नॉट ड्यू टू द जीन माइग्रेशन। ठीक है, क्लियर? So that are the some Yes, ma'am. facts we should know, and in the next part okay, and there are some more evidences of natural selection. देखो हमने नेचुरल सिलेक्शन के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ डिटेल्स में किया है कि नेचुरल सिलेक्शन की एविडेंसेस क्या हो सकता है, फिर नेचुरल सिलेक्शंस के सपोर्ट में हम क्या क्या कह सकते हैं। नाउ वी विल से द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, एविडेंसेस of evolution. So in case of evidences of evolution, we should know कि आपके एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में क्या क्या है बेटा। देखो जैसे होमोलोगस ऑर्गन, then it should be analogous organ, then it should be vestigial organ, next which will be atavism, vestigial organ, analogous organ, homologous organ, this thing. Homologous organ means जिनके मैम लास्ट में क्या लिखा मैम आपने? एटेविज्म। atavism, हाँ, origin same, sorry, homologous organ जिनके structure same, function different. Analogous organ जिनके function same, structure different. Vestigial organ are those organs which were active in previous condition, and so that it was very much well evidenced character, but now it is
in the present character. I will give you the examples, then ये और भी clear हो जाएगा. It is present in the modern thing, modern life modern organism. It is present but non-active. Atavism means reappearance of the character. Reappearance of the character. ओके सो देखो बेटा, अब ये होमोलोगस ऑर्गन क्या है? जितने भी लाइक आप ले लो कि ह्यूमन के हैंड, ओके, वी आर टेकिंग ह्यूमन के हैंड एंड बर्ड्स विंग, बर्ड के विंग्स. तो वी नो जो बर्ड के जो विंग है, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द फोर आर्म. That is the modification of forearm. Okay, and हमारे जो हैंड है ये भी हमारा फोरआर्म है. सो बोन्स क्या क्या प्रेजेंट है? देखो, बोन्स जो है फोर आर्म में हमारे प्रेजेंट होता है ह्यूमरस, रेडियस, ulna, then carpal, metacarpal, phalanges. Carpal, metacarpal and phalanges, ये सारे बोन्स हैं. और देखो फंक्शन क्या है, तो आप ह्यूमन के हैंड में भी ये 5 तरह के बोन्स देख सकते हो. आप बर्ड्स के अगर विंग्स में देखोगे तो भी आपको ये सारे बोन्स नजर आएगी. लेकिन ह्यूमन के हैंड इज यूज्ड फॉर ग्रास्पिंग, फॉर राइटिंग, फॉर टेकिंग फूड, whereas birds के wings is used for flying. That means their function is different but structurally they are same. They are the evidence for the evolution, not for the natural selection. They are the evidences for the evolution. Okay, next देखो बेटा, मैम ये सेकंड पॉइंट क्या है मैम? रेडियस, radius and ulna. ओके. नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट इज द एनालॉगस ऑर्गन. एनालॉगस ऑर्गन में बर्ड्स के विंग्स एंड insect wings. Insect wings. ओके, तो बर्ड्स के विंग्स एंड इंसेक्ट विंग के फंक्शन अगर हम देखते हैं तो दोनों के फंक्शन सेम है. दे आर यूज्ड टू फ्लाई. अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो बर्ड के विंग्स के अंदर सारे बोन्स है, पर इंसेक्ट विंग्स के अंदर ये सारे बोन्स प्रेजेंट नहीं है. दैट मीन्स दे आर functionally similar but structurally different. Okay, next we are coming to the vestigial organs. Next we are coming for the vestigial organ. So बेटे ये vestigial organ क्या है? Vestigial organ के example है appendix. हमारे बॉडी में vestigial organ के example है appendix. Then it is the nictitating membrane, nictitating membrane, our pinna, external pinna, then mammary gland in man. All these are the example of the vestigial organ. Vestigial organ वो सारे organ है जो कि लाइक कि आप अपेंडिक्स को देख लो. अपेंडिक्स जो है ये जो हर्बीवोर्स है इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, क्योंकि अपेंडिक्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते थे जो कि सेल्यूलोज डाइजेशन में हेल्प करता था. तो ह्यूमन की अगर आप ओरिजिन देखोगे दैट इज द एप्स. एप्स वर द फ्रूट ईटर. ठीक है, सो उस टाइम सेल्यूलोज डाइजेशन की जरूरत थी एंड द अपेंडिक्स वाज वेरी मच एक्टिव.
हमारे बॉडी में अपेंडिक्स के कोई रोल नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, बट अपेंडिक्स इज स्टिल प्रेजेंट इन आवर बॉडी. इट इज प्रेजेंट एज अ नॉन रिएक्टिव ऑर्गन. इसीलिए अगर किसी को अपेंडिक्स के प्रॉब्लम होता है तो अपेंडिक्स को काट के निकाल दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है. So this is the vestigial organ. This is again one support for the evolution. Okay. अच्छा बेटा, होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन के कई सारे एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी बुक में हैं. You need to do all those things. Next is the atavism. Next is the atavism. Okay. So see, what is atavism? This is the reappearance of the character, like tell. आज गूगल में जाके एक बार सर्च करना टेल्ड मैन. अभी भी आप देखोगे एटलीस्ट 2 to 3% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन बोर्न विद द टेल. ये हमारे एवोल्यूशन से पहले एप मैन के अंदर ये टेल के कैरेक्टर हुआ करता था. आज के डेट में हमारे टेल नहीं है. स्टिल वी आर बोर्न विद द टेल. This is the reappearance of the atavism. Our pharyngeal gill slits. We all know that during the course of the evolution, we have lost our pharyngeal gill slits, and again during the embryonic condition, all mammals have these pharyngeal gill slits. Sometimes यहाँ पर हमारे pharyngeal gill slits appear होता है. That is known as the fistula. ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके एक मतलब एक नोटिस डिजीज है. आप ऐसे ही चलोगे तो रास्ते में काफ़ी सारे क्लिनिक आपको देखेगी जहाँ पर इट इज़ रिटन फिस्टुला ऑपरेशन होता है. सो लाइक दिस वी आर गेटिंग सम ट्रबल. दिस इज द atavism. अगेन द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट. अगर आप एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट देखते हो तो बर्ड के एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट इज अनदर प्रूफ फॉर द एवोल्यूशन. क्योंकि जब हमारे डेवलपमेंट सारे लाइक कि बर्ड्स के एम्ब्रायो जैसे डेवलप होता है, ह्यूमन एम्ब्रायो के भी डेवलपमेंट वैसे ही होता है, फ्रॉग के भी ऐसे ही होता है, बहुत ही माइन्यूट सा फर्क होती है. दैट इज व्हाई इट इज द another evidence for the evolution. So these are the evidences of evolution. Next part जो हम करेंगे that is the origin of man. तो origin of man जो है वो हम लोगों को पता है कि एप मैन से ही, ठीक है, हमारे ओरिजिन हुआ था. दैट वी ऑल नो. तो आपके बुक में काफ़ी सारे मतलब गिवन है, लाइक कि ड्रायोपिथेकस पहले आता है. ड्रायोपिथेकस, देन इट कम्स द रामापिथेकस, देन इट मम्मी कम्स ओरिजिन ऑफ मैन के पार्ट है. यस, रामापिथेकस. It is the origin of man. Origin of man. Okay. So Dryopithecus, Ramapithecus, then it should be Australopithecus. Australopithecus. Then it should be Homo habilis. Homo habilis. Then it should be Homo erectus. Then it should be Homo neanderthal. And last one is the Homo sapiens. तो बेटा पहली चैलेंज तो ये है कि इसको याद रखना, ये सीक्वेंस याद रखना सबसे मुश्किल बात है. अच्छा, तो इस सीक्वेंस को हम कैसे याद रखेंगे? हम एक ट्रिक्स बना लेते हैं जिससे हमारे बहुत इजीली ये सीक्वेंस याद रह जाएगा. ओके. सो सी मम्मी लास्ट टू पे लिखे मैम होमो हैबिलिस. नियन. मम्मी ये सेपियन से ऊपर, होमो सेपियन से ऊपर होमो निएंडरथल. सो ये कौन है? ये है डॉक्टर राम. ठीक है, डॉक्टर राम इन ऑस्ट्रेलिया.
डॉक्टर राम पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया में. ओके, एंड have research on evolution of new species. ठीक है, डॉक्टर राम एवोल्यूशन, एक न्यू स्पीशीज के एवोल्यूशन के लिए रिसर्च के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं. अब देखो पूरी सीक्वेंस आपको याद हो जाएगी. ठीक है, केवल रिसर्च को हम ब्रैकेट में डाल देते हैं और ऑफ को हम ब्रैकेट में डाल देते हैं. डॉक्टर राम, ठीक है, डॉक्टर फॉर ड्रायोपिथेकस, राम फॉर रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलिया फॉर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, Australia for Australopithecus, have for Homo habilis, evolution, E for evolution, E for erectus, then N for new, N for Neanderthal, and species, SP for species, SP for sapiens. तो बस एक लाइन से पूरी सीक्वेंस आपको याद रह गया है. आपके मेनली यही क्वेश्चन आता है कि सीक्वेंस देखना पड़ता है. नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एप मैन. एप मैन हम किसको कहते हैं? ठीक है, एप मैन हम किसको कहते हैं? तो इस ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस को हम लोग कहते हैं एप मैन. अब देखो सीक्वेंस क्या है. सीक्वेंस में ड्रायोपिथेकस पहले है, देन रामापिथेकस है. तो फर्स्ट अगेन एक क्वेश्चन, पहले तो सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन आ गए. सेकंड जो क्वेश्चन आता है कि which of the following are considered as the ape man. So both the Dryopithecus and Ramapithecus are considered as the ape man. Second, third question आता है which have more similarities with the man. तो definitely on the course of evolution ये जो आपके रामापिथेकस है ये ड्रायोपिथेकस के बाद ओरिजिनेट हुआ था. तो वी कैन से कि रामापिथेकस के साथ मैन की ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है और ड्रायोपिथेकस के साथ एप्स की ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो ह्यूमन, मॉडर्न ह्यूमन है, उनके डायरेक्ट एंसेस्टर कौन है? तो आप देख सकते हो होमो सेपियंस जो ग्रुप है it has been originate from Homo neanderthal. So we can say that Homo neanderthal is the direct ancestor of the man. डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ द मैन. फिर आपके क्वेश्चन आ सकता है कि जो मॉडर्न मैन है उसके फर्स्ट ओरिजिन कहाँ पर हुआ था? तो देखो फर्स्ट ओरिजिन जो है होमो, होमो ग्रुप पहले ऐड हुआ है होमो हैबिलिस के अंदर. सो वी कैन से दिस इज द ग्रुप, होमो हैबिलिस इज द ग्रुप जहाँ पर फर्स्ट टाइम मॉडर्न मैन लाइक अपीयरेंस हैज बीन क्रिएटेड. तो ओरिजिन ऑफ मैन के कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है. एक तो हमने सीक्वेंस लर्न किया, ठीक है. सेकंड हमें देखना है कि विच वन आर द एप मैन. थर्ड क्वेश्चन हमने किया कि विच वन हैज मोर सिमिलरिटीज विद मैन, विच वन हैज द मोर सिमिलरिटीज विद द एप. सेकंड वन आता है कि व्हाट इज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न मैन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द मॉडर्न मैन दैट यू ऑल नो. ये भी एक क्वेश्चन आता है. डेफिनेटली होमो सेपियंस इज द मॉडर्न मैन. थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि होमो हैबिलिस मतलब फर्स्ट होमो ग्रुप और या तो फिर फर्स्ट ह्यूमन लाइक अपीयरेंस हुआ था, दैट इज इन द फर्स्ट ह्यूमन लाइक अपीयरेंस हैज बीन क्रिएटेड इन द होमो हैबिलिस ग्रुप. एंड नेक्स्ट देखो एक है होमो इरेक्टस. इरेक्ट होना मतलब सीधा खड़ा होना. सो दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट व्हिच ग्रुप विल फर्स्ट शो इरेक्टाइल मूवमेंट, सीधा खड़े होने होकर जो चलने का कौशल है वो किस में आया था? सो दैट इज इन द होमो इरेक्टस. इट इज द ग्रुप विच फर्स्ट shows erect bipedal locomotion. Bipedal locomotion.
तो हमारे लिए ये चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चार्ट था। इसमें से हमने कई कुछ जो हमारा मतलब है कई कुछ जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये हमने कर लिया है। ओके, सो